मैं कमल कौशिक, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। एसवाईएल को लेकर एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई, केंद्र की मध्यस्थता भी हुई, लेकिन नतीजा निकला। जवाब तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने यही दिया है कि कोई नतीजा नहीं निकला है। एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपके सामने, लेकिन हरियाणा का पक्ष आना बाकी है। हम पुराने स्टैंड पर कायम है, ये मुख्यमंत्री मान कह रहे हैं। हम डार्क जोन में चल रहे हैं, ये भी पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। एसवाईएल को लेकर जो बैठक थी वो लगभग बेनतीजा रही है, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, इन दोनों का पक्ष और इन दोनों का बयान आना बाकी है। हमारी नजर बनी हुई है लगातार, हम आपको दिखाएंगे, सुनवाएंगे सीधे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये जरूर सुनिए कि पंजाब के मुख्यमंत्री जब इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद बाहर आए तो वो क्या कह रहे थे। पंजाब का पक्ष इस मीटिंग के बाद क्या था, ध्यान से सुनिए। पानी है नहीं ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹਿਰ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣੀ। ਸੋ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆ ਕਦੇ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਨਾਬ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਟੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਨਾਬ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਟਨਲ ਬਣਨੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਜੇ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ YS ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਯਮੁਨਾ ਸ਼ਾਰਦਾ ਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਤਲੁਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 52 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ 52 MAF ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 14.5 ਹੈ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ, 14.5, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 600 ਫੁੱਟ ਤੇ 600 700 ਫੁੱਟ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਯ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ 70% ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਉਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਜੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ 5 MAF ਜਿਹੜਾ ਚਨਾਬ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਚਨਾਬ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੁੱਬਣ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤੂਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵਰਤੂਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਵਗਤ ਕਰਾਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी मौजूद हैं फोन लाइन पर, जो कि वहीं पर अभी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं जहां पर यह बैठक हुई थी। लेकिन इंतजार है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, वो क्या कहते हैं, आगे कैसे इस पूरे मसले पर किस दिशा में बढ़ते नजर आएंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जितेंद्र चौधरी। जितेंद्र, मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपना पक्ष रखेंगे हरियाणा की तरफ से, कितना इंतजार और करना पड़ेगा? काफी देर हो चुकी है, पंजाब के मुख्यमंत्री अपनी बात कहकर जा चुके हैं, बस इंतजार है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का।
देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें कमल, पंजाब के मुख्यमंत्री का बयान खबरें अभी तक के माध्यम से हमने अपने तमाम दर्शकों को भी सुनवाया है। SYL सतलुज यमुना लिंक को लेकर के आज हुई इस हाई लेवल बैठक के अंदर भी पंजाब का स्टैंड जो है वो उसी प्रकार का मिला है जिस प्रकार का इससे पहले की बैठकों के अंदर देखने के लिए मिला है। अगर हम बात करें, पंजाब के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर से ये कहा है कि हमारे पास पानी नहीं है। इससे पहले भी ये बात कहते नजर आए हैं। कुछ आंकड़े भी उनकी तरफ से रखे गए हैं। उन्होंने बताया है कि 52 मिलियन एकड़ फीट जो पानी पंजाब को चाहिए, अगर उनके खेत में सिंचाई के लिए, ऐसी स्थिति में उनके पास साढ़े पानी की जो दिक्कत है वो मौजूदा समय में सिंचाई के लिए फिलहाल नहीं हो पा रही है। और जो ग्राउंड वाटर है वो 600 से 700 फुट नीचे चला गया है। यानी डार्क जोन का इशारा यहाँ पर पंजाब के क्षेत्रों का भी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान करते हुए नजर आए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की तरफ से कहा गया कि पंजाब 70% डार्क जोन में गया है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा निकाल लिया गया है। यानी जिस वक्त ये समझौता इससे पहले जब हुआ था पानी को लेकर के, और आज जो पंजाब के अंदर वास्तविक स्थिति है उसको दर्शाते हुए यहाँ पर बैठक के अंदर भी पंजाब के मुख्यमंत्री नजर आए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जो पंजाब के अंदर पानी खींचने के लिए, यानी ग्राउंड वाटर को खींचने के लिए जो मोटर्स लगाई जा रही हैं, ऐसी मोटर्स का इस्तेमाल दुबई में तेल निकालने के लिए किया जाता है। यानी इतनी हैवी मोटर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है पानी निकालने को लेकर के, जो दर्शाता है पानी की स्थिति पंजाब के अंदर किस प्रकार से बनी हुई है। और इसमें यह भी उन्होंने ऐड किया है कि नहर निर्माण आखिर किस लिए होना चाहिए। देखिए कमल, हमने कल पंजाब के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनसे भी प्रतिक्रिया ली थी। उनका भी कुछ इसी प्रकार से कहना था कि अगर नहर निर्माण कराना है, जब पानी नहीं है तो नहर निर्माण किस बात का, ये एक चाल हो सकती है। ठीक इसी से मिलता जुलता बयान यहाँ पर दिया है। अगर हम बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से भी उनका ये कहना था कि कहीं से भी नहर निकालने का औचित्य तब बनता है जब पानी हो, और हमारे पास पानी नहीं है। कई बार उन्होंने अपनी इस मीडिया प्रतिक्रिया में, अगर हम बात करें, इस बात को दोहराया है कि साढ़े कोल पानी नहीं है, यानी पंजाब के पास पानी नहीं है। ये भी उन्होंने बताया है कि हमारे पास बहुत सा रिकॉर्ड है। जब हरियाणा के साथ एग्रीमेंट हुआ था और पानी लेने का ये एग्रीमेंट था, और यमुना से 1994 में से लेकर के अब 30 साल हो चुके हैं, एक भी डैम जो है अभी तक नहीं बना है। ऐसी स्थिति में दोबारा अगर हम बात करें तो पानी न होने की बात यहाँ पर दर्शाई है पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से। और ये बताया है कि किस तरीके से धारा कला में एक डैम जो है वो बनाया जा रहा है, जिसके साथ ये डैम बनाकर 206 मेगावाट जो बिजली है वो पैदा करने को लेकर के भी कार्य किए जा रहे हैं। ये जो कार्य इस पानी को लेकर के जो प्रभावित करते हैं उसकी बात यहाँ पर सही है। एक सवाल मीडिया की तरफ से ये भी पूछा गया कि पाकिस्तान में कुछ पानी जा रहा है। कई बार मीडिया प्रतिक्रियाएं कमल आपने भी सुनी होगी, वो पानी वेस्ट ना जाए, उस पानी को जो है का जो सिरा है उसे मोड़ते हुए इस नहर निर्माण के साथ उस पानी का इस्तेमाल जो है हो सकता है। इस बात को भी दरकिनार करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री नजर आए हैं। इसको लेकर के भी उन्होंने आंकड़े रखे हैं कि किस प्रकार से जो एक भी बूंद पानी जो है वो पाकिस्तान की ओर नहीं जा रहा है। 5 MAF पानी जो चनाब से रावी को आना था, वह पानी चनाब से पाकिस्तान की ओर जा रहा है। ये बात पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए। तो ये कहा जा सकता है कि इन तमाम आंकड़ों के साथ, इस पूरी बैठक के लब्बो-लुआब के साथ आंकड़े जो है वो जरूर जो है लंबे चौड़े प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन साफ तौर से ये कहना था कि भले ही मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, वहाँ अपना पक्ष जो है पंजाब जो है मजबूती के साथ रखेगा, तथ्यों के साथ रखेगा। और इस बैठक के अंदर भी उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए क्लियर मना कर दिया है कि पंजाब के पास कोई पानी नहीं है, और जब पानी नहीं है तो फिर नहर निर्माण आखिर किस लिए किया जाए, क्योंकि आज अगर नहर निर्माण होगा तो आने वाले समय में कोई पानी की बात भी हो सकती है। एक बार बाढ़ में, हाल ही की जो बाढ़ आई थी, उस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि अब अगर हरियाणा को पानी चाहिए तो हुण ले लीजिए पानी। लेकिन इस बात को आज फिर दोहराया है कि उस वक्त जब पानी दे रहे थे तो हरियाणा ने पानी लेने से इनकार कर दिया था। भगवंत मान का जो अपना एक अंदाज है, उसी अंदाज में एक बार दोबारा से उस बयान को वो दोहराते हुए नजर आए हैं। कमल, फिलहाल अगर हम बात करें, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ताज होटल के अंदर ही बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में
क्या कुछ नया निकल करके आता है, क्योंकि ये तो स्पष्ट हो चुका कि पंजाब चाहे ये बैठक का दौर हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई का दौर हो, अपने इस स्टैंड को लेकर के ही अपनी बात रखने जा रहा है, जो आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत के समक्ष रखी गई है। अब ये बात स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि हरियाणा के जो नेता हैं वो भी कहते नजर आ रहे थे, आज हमने इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला से जब बात की थी तो उनका भी यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को ही इस मसले पर और कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। इस मसले पर जो केंद्र है उसको भी नजर बनानी होगी और आर्मी लगा करके नहर निर्माण करवाना पड़ेगा। अब ये देखना है कि ये तमाम चीजों की आवश्यकता पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट क्या निर्देश देता है, 4 जनवरी को इस मसले पर सुनवाई होनी है। कमल, हम इससे पहले भी चर्चा कर रहे थे, इस बैठक का उद्देश्य भी यही है, क्योंकि इस बैठक का खाका सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के अंदर भी केंद्र की तरफ से रखना होगा, क्योंकि केंद्र को ये पूरी जिम्मेवारी जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई थी और ये कहा था कि इसका पूरा सर्वे कराया जाए, ये देखा जाए कि नहर निर्माण को लेकर के जो जमीन है वो संरक्षित है। कह रहा है, पंजाब के मुख्यमंत्री ने जिक्र किया है मीटिंग का। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे थे कि पानी तो बाद की बात है, नहर का निर्माण तो करवाइए। ये बात तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी पहले कही जा चुकी है और केंद्र की मदद से काम हो सकता है, इस बात का जिक्र भी है, यानी कि मध्यस्थता केंद्र कर सकता है दोनों राज्यों के बीच, और ऐसा हो भी रहा है। आपको लगता है कि जो तर्क बार बार पंजाब की तरफ से दिया जा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट में कहीं टिक पाएगा? ये बात तो पहले भी हो चुकी है कि हमारे पास पानी नहीं है देने को, ये बात आज से तो नहीं हुई है, आज तो नहीं कही है, और हम पहले भी जिक्र कर रहे थे जितेंद्र कि मीटिंग खत्म होगी और पंजाब के मुख्यमंत्री का वही बयान आ सकता है, और यही बात कही कि पुराने स्टैंड पर हम कायम हैं। जितेंद्र, देखिए बिल्कुल कमल, क्योंकि यहाँ पर जो पंजाब का जो स्टैंड है उसमें किसी प्रकार की तब्दीली सुप्रीम कोर्ट के अक्टूबर माह में कड़े रुख अख्तियार करने के बाद क्या तब्दीली आई है, क्या केंद्र के साथ बैठक करने के बाद कोई हल की ओर पंजाब जो है जाते हुए नजर आता है, या फिर जो अपना पहले से तय किया हुआ स्टैंड है उसी स्टैंड पर रहता है। बैठक के बाद स्पष्ट हो गया, पंजाब का स्टैंड वही नजर आया है। अपने कुछ नए जो तथ्य हैं वो जरूर यहाँ पर रखे गए हैं। ये भी कहा गया है कि ये एफिडेविट 4 जनवरी को कोर्ट के समक्ष भी पेश किया जाएगा, अपना मजबूती से पक्ष पंजाब की तरफ से रखा जाएगा। अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में 4 जनवरी को होने वाली जो सुनवाई, जो सबसे महत्वपूर्ण सुनवाई मानी जा रही है, क्योंकि अभी जो बैठक चल रही है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच, इस बैठक के अंदर भी अगर हम बात करें तो काफी हद तक इन तमाम पहलुओं को लेकर के चर्चा की जा रही है। आगे चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष के अंदर अगर इस तरीके की स्थिति बनी रहती है तो फायदे नुकसान को भी जहां पार्टियों की तरफ से देखा जाता है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के उस कड़े आदेश की गंभीरता को भी देखा जाएगा कि किस प्रकार से इस मसले का जल्द से जल्द इतना और इंतजार करना पड़ सकता है। जितेंद्र, काफी देर से बातचीत चल रही है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच। दर्शक भी जानना चाहते हैं, और पंजाब के मुख्यमंत्री बहुत पहले बयान दे के जा चुके हैं, लेकिन ये बहुत लंबा इंतजार करना पड़ रहा है मुख्यमंत्री के पक्ष को जानने के लिए। देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये बात लाजमी है कि जब इस मामले पर प्रतिक्रिया आएगी तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और मुख्यमंत्री मनोहर लाल दोनों ही साथ में आकर के मीडिया से रूबरू होते हुए नजर आएंगे, और बहुत अधिक चांस है कमल इस बात के कि केंद्रीय मंत्री ही अपनी तरफ से मीडिया को जो है वो बात रखें। हालांकि किसी सवाल के जवाब को लेकर के मुख्यमंत्री अगर साथ होंगे तो वो भी इसको लेकर के अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ सकते हैं। कमल, आपको एक अपडेट देना चाहते हैं हम, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गजेंद्र शेखावत बाहर आ रहे हैं। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि आप जो मीडिया तस्वीरें सीधे जो हमारा फ्रेम है, जी बोलते रहिए, तस्वीर हम दिखा रहे हैं जितेंद्र। देखिए बिल्कुल उस फ्रेम की ओर जो है अब नजर बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि दोनों ही नेता, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि दोनों ही नेता एक साथ बाहर आएंगे, मीडिया के सामने जो है रूबरू होंगे, और अब से कुछ ही पलों के अंदर तस्वीरें आपको देखने के लिए मिलेंगी कमल, क्योंकि हम आज होटल में मौजूद हैं तो उन्हें निकलते हुए हमने देखा है। आप अगले कुछ पलों के अंदर हमारा जो फ्रेम, लाइव फ्रेम यहाँ पर लगा हुआ है, उस फ्रेम के अंदर दोनों ही नेताओं को देख पाएंगे। क्या कुछ इस बैठक के अंदर रहा है उसकी जानकारी भी आप सीधे लाइव आपको अब से कुछ ही पलों के अंदर खबरें अभी तक के माध्यम से सबसे पहले हमारे जो दर्शक लगातार इस खबर को देख रहे हैं उनको इसकी जानकारी जो है अब से कुछ ही देर में मिलनी शुरू हो जाएगी। कमल, अब ये फ्रेम आ चुका है जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री बिल्कुल हम देख पा रहे हैं तस्वीरों को। बिल्कुल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और जो इंतजार था वो खत्म होने वाला है। क्या बयान देने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल, आइए सुनने का प्रयास करते हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं।
मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि सतलुज यमुना लिंक नहर ये एक विषय सुप्रीम कोर्ट में वर्षों से पेंडिंग है और उसमें लगातार पिछले दिनों में कई हियरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में। अभी भी जो लास्ट हियरिंग हुई थी उसके अंदर फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एमिकेबली कोई रास्ता निकालने के लिए केंद्र सरकार पहल करे। तो केंद्र सरकार की पहल के नाते से आज हमारे जो इरिगेशन मिनिस्टर हैं श्री शेखावत जी, उन्होंने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया था, हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी थे और एक डिस्कशन जो हुआ है उसमें यही है कि अगली बार सुप्रीम कोर्ट में कोई पॉजिटिव इस नाते से कोई स्टैंड लेकर के, और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूशन का ये विषय है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि एसवाईएल का निर्माण होना चाहिए। तो वर्तमान में जो स्थिति है उसका एफिडेविट पंजाब सरकार, केंद्र सरकार, हमने तो अपनी एक अपील की हुई है। हमने तो कहा कि इसको एसवाईएल को नहर को बनाना ही चाहिए। तो अगली बार पॉजिटिवली कोई ना कोई सोच विचार करके और एफिडेविट दें, ऐसा एक विषय आया है। और कुल मिलाकर के डिस्कशन जो है एमिकेबली हुआ है, उसमें किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं था। अगर मैं एक पंक्ति में कहूँ तो बात बड़े मनोहर माहौल में हुई, लेकिन अभी मान है कि मान नहीं रहे हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि हम पॉजिटिवली सोच करके और कोई ना कोई एक एफिडेविट देने की बात जो कही गई है वो केंद्र सरकार की ओर से ही जाएगा और वो केंद्र सरकार को लिख करके देंगे। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री बाहर आने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि पानी नहीं है, तो नहर किस लिए बनाई जाए? देखिए, विषय उतना ही है कि वो दो विषयों को जोड़ करके चल रहे हैं कि नहर बनाना और पानी है कि नहीं है। हम दोनों विषयों को अलग अलग करके बात कर रहे हैं कि नहर बनाना चूँकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट भी बार बार यही कह रहा है कि उसको इसके साथ लिंक नहीं करना है। पानी जितना है, जो फैसला हुआ है उसके हिसाब से प्रो रेटा ही पानी जो मिलेगा। अभी 1.11 MF जो पानी पूरा होने के बाद भी वो हरियाणा को नहीं मिल पा रहा, लेकिन पानी कम है, उस नाते से प्रो रेटा हमको मिलता है। पानी पूरा हो जाए तो भी प्रो रेटा मिलने के लिए नहर की आवश्यकता है। और वैसे भी वो नहर बहुत एक अल्टरनेटिव चैनल भी हमको चाहिए, क्योंकि जब इतना बड़ा पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो कई प्रकार की कठिनाइयाँ आ जाती हैं। बल्कि हमने तो यहाँ तक भी कहा है कि कल को अगर कोई दुर्घटना हो जाती है जो वर्तमान भाखड़ा मेन लाइन है, तो इसका नुकसान पंजाब को ही ज़्यादा होगा, हरियाणा को नहीं होगा। क्योंकि पंजाब के एरिया में अगर कहीं टूटती है तो उसका ज़्यादा पोर्शन पंजाब के एरिया में ही है, तो इसलिए उसका होना ज़रूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द शेयर ऑफ वाटर। एक एग्जीक्यूशन है नहर बनने का, उसी विषय पर दोनों कायम हैं। तो भी इस बार सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है, लेट अस सी। सीएम साहब, केंद्रीय मंत्री ने जब पंजाब ने ये कहा कि हमारे पास पानी नहीं है, हरियाणा पानी के लिए जिस तरीके से काम कर रहा है, माइक्रो इरिगेशन को लेकर काम कर रहा है, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत साहब ने कोई नसीहत दी है सर उनको कि इस पे भी काम होना चाहिए? बिल्कुल ठीक बात है। जैसे हरियाणा के कई पहलुओं को केंद्रीय मंत्री शेखावत जी ने उसकी प्रशंसा की है। वाटर मैनेजमेंट ये अपने आप एक इशू है और फार्मिंग के भी कई इश्यूज हैं, जिसको लेकर के एक कमेटी, हालांकि वो कमेटी अदर देन एसवाईएल इश्यूज पर पहले से बनी हुई है, दोनों चीफ सेक्रेटरी बैठते हैं, उसी का दायरा बढ़ा करके पानी का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, रिचार्जिंग के विषय कैसे ज़्यादा हों, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, जिसके अंदर जैसे हमने पानी का कम यूज़ करना है तो धान की बिजाई ना करने के ऊपर इंसेंटिव दिया है, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस इसके ऊपर भी हमने कहा है, और माइक्रो इरिगेशन के ऊपर हमने जोर लगाया हुआ है। तो इन सब चीज़ों की तुलना केंद्रीय मंत्री जी ने की है कि हरियाणा जैसे इस प्रकार से कर रहा है तो पंजाब को भी ऐसा करना चाहिए। पंजाब में भी पानी का, क्योंकि जो ज़मीन का पानी है, लोग दोहन जो कर रहे हैं उसका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है पानी का ट्यूबवेल लगा करके, वो पंजाब में भी काफ़ी किसान कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी काफ़ी कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा खपत है धान की, तो धान की बिजाई के ऊपर भी हम सबको मिल करके करना चाहिए। वो कमेटी दोनों आपस में बैठ करके इस पर ज़रूर प्रबंधन पर काम करेंगे, ताकि पानी सबको मिलना चाहिए, हरियाणा हो चाहे पंजाब हो। तो पानी की आवश्यकता किसी की कम नहीं है, दोनों की है। लेकिन विषय तो है जो शेयर पहले एक एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट के हिसाब से कम पानी का डिस्ट्रीब्यूशन प्रो रेटा हो, ये विषय। क्या पाकिस्तान में आया है, उन्होंने कहा है कि संयुक्त पंजाब कर देना चाहिए, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब सबको संयुक्त कर देना चाहिए, पानी का झंझट खत्म हो जाए। चलो अच्छा है, उनकी जो उनकी सोच है वो एक बड़ी सोच है, उस बड़ी सोच में कहीं कोई आपत्ति नहीं है।
सारा देश भी एक है, और अगर फिर से पंजाब एक होता है तो किसी को आपत्ति नहीं है, बैठ करके मोडेलिटीज तय कर लेंगे। क्या दिक्कत? पाकिस्तान को जो पानी जाता है, पंजाब ने स्वयं माना है कि हरिके डैम के ऊपर उस पानी को वो डाइवर्ट करके पंजाब में उपयोग करेंगे। इसका अर्थ जो हरियाणा की बात है कि ये पानी जो जा रहा पाकिस्तान को, तो पानी हरियाणा को ना दे करके पाकिस्तान को आज तक बहने दिया गया, जो कि आज वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि पानी जो है पाकिस्तान को जाता है। तो हमारा तो ये कहना है कि पाकिस्तान को नहीं जा रहा, पंजाब उपयोग करे, हरियाणा उपयोग करे, आपस में बैठ करके अमी कभी उसका अभी सुप्रीम कोर्ट का जो डेट है, वो सुप्रीम कोर्ट की डेट में क्या विषय आता है उसके बाद विचार। दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम साहब दिल्ली के विवादित बयान जो उन्होंने जब बाढ़ आई थी उस समय जब दिया था कि अब हमारे पास पानी है, अब दोबारा ले लो, ठीक वैसे ही स्थान जो है आज मीटिंग के बाद उन्होंने दोबारा कसा। इस तरीके से देखते इतना इंपॉर्टेंट मीटिंग के ऊपर जो है इस तरीके का रवैया। देखिए, ये एक बहुत हल्का बयान है, इसके ऊपर गंभीरता नहीं दिखानी चाहिए। बाढ़ के समय बाढ़ आती है, सूखे के समय सूखा होता है। बल्कि मैं तो प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब थे, मैं उनकी सोच को दाद देता हूं, जब उन्होंने बहुत वर्ष पहले कह दिया था कि हमको इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स ये करना चाहिए। एक ही समय में कहीं कहीं तो बाढ़ आ जाती है, उसी समय कुछ इलाका देश में ऐसा होता है जहाँ सूखा पड़ता है, तो पानी का जहाँ आवश्यकता वहाँ भेजा जा सके। तो इंटरलिंकिंग ऑफ वाटर ये कोई नया विषय नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है। और ये नहर बनने से इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स ये विषय है, तो ये होना ही चाहिए। पानी का बंटवारा तो जितना होगा उसको हम कर लेंगे। सर, आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो हरियाणा में आकर अलग बयान देते हैं, पंजाब में अलग बयान देते हैं। आप ये कहेंगे सर, आम आदमी पार्टी के पंजाब में मुख्यमंत्री है, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को हरियाणा के हितों की भी चिंता करनी चाहिए? आप वो हरियाणा से संबंध देखिए, कोई कमेंट करना नहीं चाहूँगा मैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, दोगली नीतियाँ उनकी। हम एक ही स्टैंड पर रहते हैं, हमारा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमें आज राजस्थान के भी नाते से जो पानी की वहाँ कमी है उसकी भी हमको चिंता होती है कि जितना पानी अवेलेबल होता है उसमें राजस्थान का शेयर है उनको मिलना चाहिए। बल्कि राजस्थान को भी एक फैसले के अनुसार जो पानी है वो हथनीकुंड डैम से जाना चाहिए। उसके चैनल बनाने के लिए कई बार हमने राजस्थान को कहा कि आप अपना चैनल बनाएं और जो शेयर आपका आप ले जाएं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। बरसात के दिनों में पानी हमारे पास यमुना में पर्याप्त होता है पानी, बल्कि कई बार बाढ़ का कारण बनता है। तो उन बाढ़ के दिनों में पानी अगर राजस्थान ले जा सकता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। धन्यवाद। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एसवाल को लेकर बड़ी बैठक खत्म हो चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा एसवाल की बैठक के बाद बात बड़े मनोहर माहौल में हुई है, मानने को तैयार नहीं है। हरियाणा के कई पहलुओं को लेकर केंद्रीय मंत्री ने हरियाणा सरकार की तारीफ की है। सारा देश एक है, मुख्यमंत्री कहते नजर आए। सीएम मान के बाढ़ वाले बयान को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हल्का बयान बताया है। आम आदमी पार्टी की दोगली नीति है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये भी कहते नजर आए। सुप्रीम कोर्ट में अभी विषय बाकी है, बात बड़े मनोहर माहौल में हुई है। ये बात कही, मानने को तैयार नहीं, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते नजर आए हैं। हमारे साथ कुछ ही पलों बाद हमारे स्टेट हेड और हरसिमरत कौर हमारी संवाददाता भी जुड़ेंगी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कहा फिर से सुनवाएंगे हम आपको। जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड जुड़े हमारे साथ। जितेंद्र, अब बताइए, पंजाब का पक्ष आ गया सामने, हरियाणा पक्ष आ गया सामने, अब क्या नतीजा है बैठक का? जितेंद्र, चलिए इससे पहले कि जितेंद्र से हम जुड़े, आपको सुनवा देते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बैठक के बाद क्या कहा है, सुनिए। राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया था, हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी थे, और एक डिस्कशन जो हुआ है उसमें यही है कि अगली बार सुप्रीम कोर्ट में कोई पॉजिटिव इस नाते से कोई स्टैंड लेकर के, और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूशन का ये विषय है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि एसवाईएल का निर्माण होना चाहिए, तो वर्तमान में जो स्थिति है उसका एफिडेविट को बनाना ही चाहिए। तो अगली बार पॉजिटिवली कोई ना कोई सोच विचार करके और एफिडेविट दें,
ऐसा एक विषय आया है और कुल मिलाकर के डिस्कशन जो है अमिकेबली हुआ है, उसमें किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं था। अगर मैं एक पंक्ति में कहूँ तो बात बड़े मनोहर माहौल में हुई, लेकिन अभी मान है कि मान नहीं रहे हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि हम पॉजिटिवली सोच करके और कोई ना कोई एक एफिडेविट देने की बात जो कही गई है वो केंद्र सरकार की ओर से ही जाएगा और वो केंद्र सरकार को लिख करके देंगे। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री बाहर आने का सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि पानी नहीं है, तो नहर किस लिए बनाई जाए? देखिए विषय उतना ही है कि वो दो विषयों को जोड़ करके चल रहे हैं कि नहर बनाना और पानी है कि नहीं है। हम दोनों विषयों को अलग अलग करके बात कर रहे हैं कि नहर बनाना चूंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट भी बार बार यही कह रहा है कि उसको इसके साथ लिंक नहीं करना है। पानी जितना है, जो फैसला हुआ है उसके हिसाब से प्रो रेटा ही पानी जो मिलेगा। अभी 1.11 MF जो पानी पूरा होने के बाद भी वो हरियाणा को नहीं मिल पा रहा, लेकिन पानी कम है, उस नाते से प्रोरेटा हमको मिलता है। पानी पूरा हो जाए तो भी प्रोरेटा मिलने के लिए नहर की आवश्यकता है और वैसे भी वो नहर बहुत एक अल्टरनेटिव चैनल भी हमको चाहिए, क्योंकि जब इतना बड़ा पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो कई प्रकार की कठिनाइयाँ आ जाती हैं। बल्कि हमने तो यहाँ तक भी कहा है कि कल को अगर कोई दुर्घटना हो जाती है जो वर्तमान भाखड़ा मेन लाइन है, तो इसका नुकसान पंजाब को ही ज़्यादा होगा, हरियाणा को नहीं होगा, क्योंकि पंजाब के एरिया में अगर कहीं टूटती है तो उसका ज़्यादा पोर्शन पंजाब के एरिया में ही है। तो इसलिए उसका होना ज़रूरी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द शेयर ऑफ वाटर। एक एग्जीक्यूशन है नहर बनने का, उसी विषय पर दोनों कायम हैं। तो भी इस बार सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है, लेट अस सी। सीएम साहब केंद्रीय मंत्री ने जब पंजाब ने ये कहा कि हमारे पास पानी नहीं है, हरियाणा पानी के लिए जिस तरीके से काम कर रहा है, माइक्रो इरिगेशन को लेकर काम कर रहा है, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत साहब ने कोई नसीहत दी है सर उनको कि इस पे भी काम होना चाहिए पंजाब को? बिल्कुल ठीक बात है। जैसे हरियाणा के कई पहलुओं को केंद्रीय मंत्री शेखावत हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, समय की कमी है, संक्षेप में बताइएगा। पंजाब का पक्ष सामने आ चुका है, हरियाणा का पक्ष सामने आ चुका है। सवाल है दर्शकों के मन में, अब बताइए बैठक का रिजल्ट आपको क्या लगता है, बेनतीजा या कुछ निकलकर सामने आया है? मनोहर माहौल में बात तो हुई है, मानने को तैयार नहीं है, मुख्यमंत्री कहते नजर आए। देखिए बिल्कुल कमल, और इसी को लेकर के आज जो ये बैठक हुई थी, इस बैठक को लेकर ये कहा जा सकता है कि अभी जो जिस प्रकार का स्टैंड निकल करके आया है उसमें पंजाब जो है अपने पुराने स्टैंड पर कायम है और जो हरियाणा ने भी अपनी तरफ से बात रखी है। ये भी कहा है कि धान की बिजाई को लेकर के हरियाणा भी पानी की बचत करने का काम कर रहा है, तो इसी तर्ज पर पंजाब भी करे। मनोहर माहौल में बात हुई, लेकिन मान है कि मान नहीं रही, ये भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कहा गया है। और साफ तौर से ये कहा है कि अब ये कोशिश की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नहर निर्माण की बात की है, वो नहर निर्माण का जो आदेश है उसकी पालना किस प्रकार से हो, इसको लेकर के, यानी अब इस पूरे बैठक के बाद ये कहा जा सकता है कि चाहे हरियाणा हो या पंजाब, अब नजरें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर टिकी है जिसकी सुनवाई उम्मीद की जा रही है कि 4 तारीख को। यानी कि कंक्लूजन यही है कि सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में ही सब कुछ सामने आएगा। जितेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है।